عوام کو ریلیف کی فراہمی اور معاشی حقائق کے درمیان توازن چاہتے ہیں۔ معاشی بحالی سے IMF اہداف کو بہتر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ معاشی مشکلات کی وجہ سے عوام نے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، ریلیف ملنا عوام کا حق ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پیرس میں IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات میں گفتگو۔ مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، اصلاحات کا عمل اوپر سے شروع کر رہے ہیں۔ معاشی نظم و نسق کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں۔ ٹیکس میں حاصل کا ہدف 94 خرب 15 ارب ہے۔ اسٹیٹ بینک نے درآمدات پر پابندی اٹھا لی ہے۔ چند تبدیلیوں کے ساتھ سپر ٹیکس برقرار رہے گا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ عوام کے لیے سہولتوں میں اضافہ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا میں 5 نئے مقامات پر پاسپورٹ آفیسز کا قیام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا سبات میں جلسے سے خطاب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں بہتری کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ صوبے میں گوشت اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ۔ بیف، مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ گوشت کی برآمدات کے حوالے سے جامع پالیسی مرتب کرنے کی بھی ہدایت۔ عید قرباں کی تیاریاں جاری، شہریوں نے چھٹی کے دن قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ اپنے عروج پر، خریدار مہنگائی کا رو رہے ہیں، جبکہ بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں۔ علماء کرام کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ جناح ہاؤس بابائے قوم اور فوج کا گھر تھا۔ حملہ کرنے والے ملک دشمن عناصر ہیں۔ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اور افواج لازم و ملزوم ہیں، علماء کرام کا اظہار خیال۔ پاک فوج کا قوم کو ایک اور نایاب تحفہ۔ وسطی کرم میں 16 سال بعد پاک فوج کے تعاون سے کوئلے کی کان کنی کا آغاز ہو گیا۔ وسطی کرم میں موجود 170 کانوں میں سے 62 کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ 2500 سے زائد خاندان کان کنی کے روزگار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بھارت کی ایک اور دوگلی پالیسی بے نقاب۔ مودی سرکار کا عبوری افغان حکومت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مودی سرکار کا نئے نامزد افغان چارج DFA کو کئی ہفتوں سے اسناد سفارت پیش کرنے کی اجازت سے انکار۔ مودی سرکار کا یونس قانونی جیسے عبوری افغان حکومت کے مخالفین اور دیگر عسکریت پسند گروپوں سے خفیہ رابطوں کا بھی انکشاف۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق گھر میں بدستور نظر بند۔ سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ، میر وائز کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا مطالبہ۔ جیلوں میں قید حریت رہنما اور کارکنان بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ حریت کانفرنس کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بارشیں برسانے والے سسٹم کی آمد۔ پری مونسون کا آغاز، 30 جون تک بالائی اور وسطی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی کے بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، بالائی علاقوں میں بوندا باندی۔ گرمی سے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پری مونسون کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ بیلاروس کی سالسی میں معاہدے کے تحت ویگنر ملیشیا نے ماسکو کی جانب پیش قدمی روک دی۔ زیر قبضہ روستوو شہر بھی خالی کر دیا۔ ویگنر گروپ کے جنگجو اپنے کیمپوں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ویگنر کے سربراہ ایوگنی پریگزون بیلاروس منتقل ہو جائیں گے۔ روسی قیادت باغی ملیشیا کے اہلکاروں اور ان کے سربراہ کے تحفظ پر بھی رضامند۔ کینیڈین حکام کا ٹائٹن آبدوز پھٹنے کی تحقیقات کا اعلان۔ ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی ٹیم روانہ۔ آبدوز کو سطح سمندر سے کنٹرول کرنے والا پولر پرنس جہاز کینیڈین ہے، اس لیے آبدوز کے آپریشن کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں کینیڈین ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ۔ کوہسار یونیورسٹی مری کے پنجاب ہاؤس کیمپس میں ایک روزہ رنگا رنگ کوہسار کلچر گالا۔ انٹرپرینورشپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے سٹال سجائے گئے۔ طلبہ کی جانب سے ٹیبلوز پیش کیے جا رہے ہیں اور روایتی کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔
यूथ वर्ल्ड चैंपियन कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर टाइटल का दिफा करने में कामयाब। उस्मान वजीर ने टाइटल चैलेंजर्स तंजानिया के बॉक्सर फकीरी सलीम को शिकस्त दी। एशियन बॉय अब तक अपनी तमाम 11 इंटरनेशनल फाइट्स जीतने में कामयाब। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स, पाकिस्तानी स्पेशल एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। मोहम्मद लुकमान का 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल। मोहम्मद लुकमान लॉन्ग जंप में भी चांदी का तमगा जीतने में कामयाब हुए। पावर लिफ्टिंग में हबीबुल्लाह ने तलाई तमगा अपने नाम किया। 3000 मीटर रेस में मीरवाइज का सिल्वर मेडल। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट शमासाल 5 से 16 दिसंबर तक कुआलालंपुर में खेला जाएगा। 16 टीमें 4 पूल्स में तकसीम। पूल डी में पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड्स, बेल्जियम और न्यूजीलैंड शामिल। पाकिस्तान पहला मैच 6 दिसंबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को रिलीफ की फराहमी और माशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। माशी बहाली से IMF के अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ये बात पेरिस से रवानगी से कबल बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा से मुलाकात में कही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पेरिस समिट के मौके पर 3 मुलाकातें हुई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल की माशी बदहाली के बाद बहाली के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ अपने वादों की तकमील के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तानी अवाम को बहुत तकलीफ का सामना है। तबाहकुन सैलाब ने इन मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। रिलीफ मिलना अवाम का हक है। MD IMF ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि अवाम के लिए सहूलतों में इजाफा मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। सवात में जलसे से खिताब करते हुए अमीर मुकाम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क में तरक्याती कामों के जाल बिछा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 मकामात पर नए पासपोर्ट ऑफिस कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम की फलाह का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। स्वात में 3 कौमी असम्बली की सीटें, 8 सूबाई असम्बली की सीटें आपको जीत कर दिखाना है और ये मैसेज देना है कि ये लोग एहसान फरामोश नहीं है, अच्छे और बुरे को जानते हैं, सबको देख लिया। ये बारी शेर को दे दे और मुस्लिम लीग नून को दे दे। फिर आप आगे देखे कि किस तरह तकदीर बदल देते। अगर हमने मैंडेट के बगैर इतना काम किया तो मैंडेट मिल जाए, पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गोश्त और डेयरी इंडस्ट्री में फ़रोग़ के लिए मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला की जानिब से गोश्त की बरामदात के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब देने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीफ, मटन और पोल्ट्री के शोबे में हायल रुकावटें दूर की जाएं। भावलपुर डिवीज़न को मीट डिवीज़न करार देने का असूली फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने हवेलियों के मुख्तलिफ देहातों के लिए सुई गैस फराहमी के मनसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये हज़ारा की तरक्की का सबसे बड़ा मंसूबा है जो मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम को दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। इलाके से 10 अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की असलियत आवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। जो काम दुश्मन नहीं कर सके वो चेयरमैन PTI और इसकी टीम ने किया। उन्होंने शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की। उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं ये गैरतमंद कौम अपनी और बच्चों की कुर्बानी देकर इस मुल्क पर आंच नहीं आने देगी। हम पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। उन्होंने बटौलनी के गाँव में 2 पुलों की तामीर और बच्चियों के स्कूल में बिजली की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान किया। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान आरिफ। रिजवान, आपके पास कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के हवाले से, आज की कार्रवाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جو ہے وہ اس وقت اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے جو کل کی جو ان کے مطالبات زر کے حوالے سے وضاحت پیش کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری ملازمین ہیں، ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ ایسے ملازمین جو ہیں وہ 2 سے 3 اداروں سے پینشن جو ہے وہ حصول جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ تو وزیر خزانہ نے اس حوالے سے یہ واضح کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے اس حوالے سے اصلاحات کی ہیں کہ کوئی بھی جو سرکاری ملازم ہے، فی الوقت یہ اصلاحات جو ہے گریڈ 17 اور اس سے ابو کے لیے کی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی 2 یا 3 اداروں سے پینشن حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر ایک ادارے سے آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اسی ادارے کی پینشن آپ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اگر کسی دوسرے ادارے میں آپ کانٹریکٹ پر ملازمت میں ہیں تو آپ یا تو اس کی سیلری لے سکیں گے یا پھر گزشتہ ادارے کی پینشن حاصل کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وزیر خزانہ نے اس بات کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا کہ جو پینشن کی مد میں اخراجات ہیں وہ 800 ارب روپے سے زائد کے ہیں۔ اس حوالے سے اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بھی اصلاحات کر دی گئی ہیں کہ کسی بھی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پینشن 2 سے 3 اداروں سے نہیں جو ہے وہ لینے دی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی اصلاحات کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں، جو ضم شدہ اضلاع ہیں، اس حوالے سے جو ہے حکومت نے جو بھی ان سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں۔ فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ان کے حساس ایک یہ معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں کی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ ایوان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ شکریہ رضوان عارف بٹ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آج کی ہونے والی کارروائی کی ابھی تک کی صورتحال آپ نے ہمیں بتائی، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور اپنے تمام ناظرین کو بتائیں کہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد برجیس طاہر نے کہا ہے کہ احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد قائد نواز شریف کے خلاف سازشوں کا باب بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب ملک مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ باب سانگلہ ہل کے سنگ بنیاد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں نواز شریف کے دور حکومت میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد شہباز شریف کے ویژن پر باب سانگلہ ہل بنا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ سے آگاہ رہیں۔ اس موقع پر میاں اعجاز حسین بھٹی امیدوار MP بھی موجود تھے۔ ناظرین، شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کبیر والا خانوال کے لانس نائک فہیم مشتاق شہید نے رواں برس 12 مئی کو بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے وطن کے دفاع میں جامع شہادت نوش کیا۔ 9 مہینے شہیداں دی تصویراں جلائیاں گئیاں، انہاں نوں سزا دتی جاوے، میرا بہت دل دکھی ہے۔ میں فہیم کو والدہ ہوں، مجھے بہت فخر ہے، میرا بیٹا ملک واسطے شہید ہویا۔ بہت بہادر تھا، میں بہت بہادر نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ پہلے سے کہتا تھا میں ملک واسطے جان دوں گا، میری ماں میں تجھے عظیم ماں بناؤں گا۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، ان کی تصویریں ان کی جلائی گئی ہیں، مجھے دل کو چین نہیں ملتا جب تک اسے سزا نہ دی جائے۔ میں بے چین ہوں، آپ سے اپیل ہے، میری ریکویسٹ ہے، التماس ہے، اسے سزا دی جائے۔ فہیم میرا بیٹا تھا، شہید ہو گیا، میں اس کے غم میں نڈال ہوں۔ اچھا بیٹا تھا، پہلے آیا تھا تو اس نے دعا منگوائی تبلیغ جماعت سے کہ میری دعا قبول ہو جائے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بچپن میں بھی بڑا میرا خیال کرتا تھا، بچپن میں بڑا کام کرتا تھا، اس کی ایک ایک بات مجھے نہیں بھولتی۔ میں لانس نائک فہیم کی بیوہ ہوں، مجھے اپنے شوہر پہ فخر ہے کہ وہ پاکستان کے لیے قربان ہوئے۔ ان کی جو شروع سے خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے لیے شہادت پائی، ان کی وہ دعا قبول ہوئی ہے اور ہمیں فخر ہے۔ اور ناظرین، علماء کرام نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور کہا کہ جناح ہاؤس بابائے قوم اور فوج کا گھر تھا، حملہ کرنے والے ملک دشمن عناصر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اور افواج لازم و ملزوم ہیں۔ علماء کرام نے اظہار خیال کیا۔ 9 مئی کو ادھر جناح ہاؤس میں جو کچھ ہوا، جس طرح تباہی مچائی گئی، آج میں نے دیکھا، اور ہم سوچتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے ایسا محب وطن پاکستانی جس کے دل میں اپنے وطن کی ذرا بھی محبت ہو،
کہ وہ یہ منظر دیکھ کے اس کا دل راضی ہوا ہو, اس منظر کو دیکھ کے وہ خوش ہوا ہو اور وہ کہے کہ یہ بہت اچھا. کوئی محب وطن پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا. افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے پہلے کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ افواج پاکستان کے محافظ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی پہن کے اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے, بلکہ افواج پاکستان کا محافظ ہر محب وطن پاکستانی ہے. ناظرین, پاک فوج کا قوم کو ایک اور نایاب تحفہ دیا گیا. وسطی کرم میں 16 سال بعد پاک فوج کے تعاون سے کوئلے کی کان کنی کا آغاز کیا گیا. 170 کانوں میں سے 62 کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے. 2500 سے زائد خاندان کان کنی سے وابستہ ہیں. 3 سال سے میں یہاں پہ ایز اے کنٹریکٹر کوئلے کا کام کر رہا ہوں. ابتدا میں کافی مشکلات تھے, لیکن الحمدللہ سیکیورٹی فورسز اور مقامی حکومت سے کافی ہمیں تعاون ملا ہے, جس سے وہ مسائل حل ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ بھی جو کام بہتر طریقے سے جاری ہے, اور باہر سے کافی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ باہر سے بھی اور اس علاقے کے لوگ بھی اس مزدوری میں حصہ لے رہے ہیں, اور یہاں پہ الحمدللہ کافی مالی مشکلات ان کے حل ہو رہے ہیں. وزیر مذہبی امور سینیٹر طلعت محمود کی صدارت میں اجلاس ہوا, جس میں مینا اور عرفات میں پاکستانی عازمین حج کو رہائش فراہم کرنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. تفصیل جانتے ہیں رانا فہیم اسلم سے. وفاقی وزیر سینیٹر طلعت محمود نے پاکستانی حجاج کو مکتب فراہم کرنے والی کمپنی ضیوف البیت کے عہدیداروں سے ملاقات کی. مکہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد وفاقی وزیر سینیٹر طلعت محمود نے کہا کہ مشاعر کے دنوں میں پاکستانی عازمین کو ہر ممکن سہولیات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ وہاں پر پرووائڈ کریں جو لوگ اردو, پشتو اور ایسی لینگویج کو سمجھتے ہوں, جس سے ہمارے حاجیوں کے ساتھ کمیونیکیشن آسان ہو. وفاقی وزیر نے کہا کہ مینا, عرفات اور مزدلفہ میں عازمین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مکتب فراہم کرنے والی کمپنی ضیوف البیت کے عہدیدار اسامہ دانش کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی عازمین کے لیے مشاعر میں بہتر انتظامات کر رہے ہیں. حکومت حج کے ایام میں پاکستان سے آئے ہوئے عازمین کے لیے مینا, عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے دوران بہتر انداز میں عبادت کرنے کے لیے انتظامات میں مصروف ہے. رانا فہیم اسلم, پی ٹی وی نیوز, مکہ مکرمہ. ملک میں مہنگائی کی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کو عید پر قربان کرنے کے لیے جانور خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے. کراچی کی مویشی منڈی میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مویشی گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنی قیمت پر مل رہے ہیں. جو جانور گزشتہ سال 1 سے 1.5 لاکھ میں ملتا تھا, اب 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے. جانوروں کے تاجر بھی پریشان ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہنگے داموں جانور خریدے ہیں, وہ کیسے انہیں سستے داموں فروخت کر سکتے ہیں. گزشتہ سال آنے والے سیلاب میں تقریباً 70,000 جانور پانی میں بہہ کر اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں, جس سے صوبہ سندھ میں جانوروں کی قلت ہو گئی ہے اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ناظرین, ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی مویشی منڈی لگا دی گئی ہے. منڈی میں قربانی کے جانوروں کی قیمتوں کے حوالے سے خریدار اور بیوپاری دونوں ہی مناسب ریٹ نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں. تفصیل جانتے ہیں لودھرا سے ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا سے. عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی مویشی منڈی لگ گئی ہے, اور لوگ اپنی پسند کا جانور خریدنے کے لیے منڈی کا رخ کر رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے میونسپل اسٹیڈیم میں مویشی منڈی میں حکومت کی طرف سے تمام سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں. مویشی منڈی میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آنے والے خریداروں کو شکایت ہے کہ اس سال منڈی میں جانوروں کی قیمت پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ ہے. پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ مہنگائی ہے, جانوروں کے ریٹ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں. جو رینج کسٹمر سوچ کر آتا ہے اس رینج میں جانور لینا بہت مشکل ہے. یہاں پر ہم بکرے خریداری کے لیے آئے ہیں. گزشتہ سال کی نسبت یہاں پر بکرے بہت زیادہ مہنگے ہیں, لیکن بکرے بھی اور تعداد میں کم ہے منڈی میں. مویشی منڈی میں جانور لے کر آنے والے ویپاریوں کو گلہ ہے کہ منڈی میں آنے والے خریدار جانوروں کی قیمت ان کی قیمت خرید سے بھی کم لگا رہے ہیں. میں نے پورا سال اس پہ محنت کی ہے, دودھ تک پلایا ہے اس کو, اس کی قیمت مناسب ریٹ مانگا ہے میں نے 65 سے 1000, لیکن عوام 45 سے 50 تک جاتے ہیں. مویشی منڈیوں میں قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت کے ساتھ ان کے طبی معائنے کرنے کے لیے محکمہ لائف اسٹاک نے فری کیمپ بھی لگایا ہے, جہاں منڈی آنے والے جانوروں کا مفت چیک اپ کیا جا رہا ہے. شکریہ عبداللہ ڈاہا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین, عید قربہ کی آمد میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. شہریوں نے قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے. رش بڑھنے سے ہی بیوپاریوں نے جانوروں کے ریٹ بھی بڑھا دیے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں پسرور سے ہمارے نمائندے رانا کیسر حیات سے. رانا کیسر حیات, آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟
ईद में चंद दिन बाकी हैं और मवेशी मंडियों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। शहरी सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में अपने मनपसंद जानवरों की तलाश में मसरूफ़ हैं। मवेशी मंडी में जहां बैल, ऊँट, गाय खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं, वहीं पर रंग बिरंगे बकरे भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। पसरूर की मवेशी मंडी में दूर दराज के इजला से आए हुए व्यापारियों का शिकवा है कि मौजूदा महंगाई की लहर के साथ चारा जात और मसाला जात के साथ किराए की मद में अखराजात बढ़ चुके हैं, लेकिन ख़रीदार मकूर रेट भी नहीं दे रहे। बहुत महंगे हैं और किराए महंगे हैं, डबल रेट हो गया है। किसी ने बैल लेना है तो किसी को बकरे की फरमाइश है, लेकिन रेट जब जेब पर भारी साबित होने पर ख़रीदार परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। मवेशी मंडी में अभी हम जानवर लेने आए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो कीमतें हैं वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें जानवर खरीदने में बड़ी परेशानी पेश आ रही है। मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पे आया हूँ वेड़ा लेने, तो पिछली बार भी हमने वेड़ा लिया था, लेकिन इस दफ़ा प्राइजें जो हैं वेड़ों की और बकरों की आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का शिकवा है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों के रेट डबल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से छोटा जानवर भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। शुक्रिया कैसर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 कश्मीरी चरवाहे शहीद जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने हस्ब मामूल बुज़दिलाना और गैर इंसानी सोच के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों में 22 साला उबैद कयूम और 25 साला मोहम्मद कासिम शामिल हैं। दोनों शहदा का ताल्लुक गांव बारादरी तहसील हजीरा जिला पुंछ से है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज के इस बुज़दिलाना अमल पर भारतीय हुकूमत से शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जान माल की हिफाजत के लिए मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय फौज को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का हर सूरत एहतराम यकीनी बनाना चाहिए। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में भारतीय फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की अचानक खिलाफ वर्जी करना एक खास मंसूबे की तरफ निशानदही करता है, जिसके तहत मासूम शहरियों को कत्ल करके बेबुनियाद इल्जामात और झूठे बयानिए बनाना मकसूद है। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया है। एहतजाजी मरासला भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय फौज की फायरिंग 2003 के बाद फायरबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी है और शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। भारत जंग बंदी मुआहदे का एहतराम करते हुए बाकी की तहकीकात करे और LOC पर अमन बरकरार रखे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर बायस उमर फारूक की मुसलसल घर में गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ सैकड़ों नमाजियों ने श्रीनगर की जामा मस्जिद के अहाते में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नमाजियों ने मस्जिद के अहाते में जमा होकर पुरअमन एहतजाज किया और मीर बायस के गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया, जो 5 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नजरबंद है। भारतीय काबिज इंतजामिया ने मीर बायस को गुज़श्ता रोज लगातार 200वें हफ्ते नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। नमाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मीर बाइस को रिहा करो जैसे नारे दर्ज थे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इन्हें ईद उल अज़हा से पहले रिहा करें। ख़वातीन और बच्चों ने भी मस्जिद के लॉन में मीर बाइस उमर फारूक की फौरी रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। जामा मस्जिद श्रीनगर के इमाम हई सईद अहमद नक्शबंदी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि काबिज हुक्काम हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा से वाबस्ता जज्बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन मीर बाइस को जामा मस्जिद से दूर रखकर मुसलमानों के जज्बात नजरअंदाज और मजरूह कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा कि मीर बाइस को घर में मुसलसल नजरबंद रखकर उनके बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए गए हैं और इस इक़दाम से कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को सख्त ठेस पहुंच रही है। जम्मू खित्ते में पुंछ के इलाके गुलपुर में एक हमले में भारतीय फौज का एक एहलकार जख्मी हो गया। भारतीय फौजियों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। सियासी तज्जियाकारों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज में कहा कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा मकबूजा जम्मू कश्मीर एक फरेब था, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना है। उनका कहना था कि सफवाक और जाबिर भारतीय हुक्मरानों के मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस तरह के दौरे मजलूम कश्मीरियों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। मोदी सरकार का उबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा भी झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफीर फरीदमा मुंतज़र को ही अफगान सिफारत खाने में रखे हुए हैं।
साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर फरीद मामूनज़े के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, जिनमें कमर्शल इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम की सप्लाई और तजारती सरगर्मियों में लूट मार शामिल है। फरीद मामूनज़े की करप्शन और बदउनवानी की शिकायत भारत में मुकीम अफगान बाशिंदे तहरीरी तौर पर भी कर चुके हैं, जबकि फरीद मामूनज़े पर भारत में तालीम हासिल करने वाले अफगान स्टूडेंट से वीज़े के हुसूल और तोसी में रिश्वत के मुतालबात जैसे संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हैं। अबूरी अफगान हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सबकदोश करने के अहकाम देते हुए अफगान सफारत खाने के तजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज अफेयर तैनात करने का फरमान भी जारी किया। मोदी हुकूमत ने नए नामजद अफगान चार्ज अफेयर को कई हफ्तों से असनाद सफारत पेश करने की इजाज़त से इनकार किए रखा, जिसे माहिरीन ने असनाद पेश करने की इजाज़त ना देना सिफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का यूनिस कानूनी जैसे अबूरी अफगान हुकूमत के मुखालफिन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों से खुफिया राब्तों में काबी इंकशाफ हुआ है। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक यूनिस कानूनी के सरबराही में अफगान तालिबान के बागियों का एक वफ़द ने हाल ही में भारत का खुफिया दौरा भी किया। ज़राए के मुताबिक भारत इस वक्त साबिक अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी राब्ते में है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत के बागियों की पुष्ट पनाही अबूरी अफगान हुकूमत की गैर मुस्तहकम करने के मुतरादिफ है। Serial number 1 in column 4 for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. B, against serial number 2 in column 4 for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. Now, Speaker. Thank you. Now I call upon Ms. Saira Bano. जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली to move the amendment. जी हाँ, मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शेख नंबर 2 में एक नए जुमला शर्तिया का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी मगर शर्त यह है कि हुकूमत ऐसी तरमीम के 30 दिनों के अंदर कौमी असम्बली से ऐसे किसी तरमीम की मंजूरी हासिल करेगी, और अगर कौमी असम्बली तरमीम को नामंजूर करती है या बसूरत दीगर उसे मनसूख करार दिया जाएगा, या जैसा भी सूरत हाल हो। Minister for Finance and Revenue, do you oppose it? Sir. Right. Now, I put the amendment as moved by Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Ms. Saira Bano and others. Abhi Chitra, Maulana Abdul Akbar Chitrali. कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज की कार्रवाई के हवाले से अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि मुख्तलिफ करारदादें पेश की जा रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत की रियासत आसाम में शदीद बारिशों के बायस सैलाब आ गया है। सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की खुराक और पीने के साफ पानी की कमी का सामना है। सैलाब से सड़कें बह गई हैं और कई इलाके कट कर रह गए हैं। फसलें डूबने और अशिया की महदूद फराहमी के बायस रियासत के कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। दरियाए बरहम पत्थर में सैलाब के बायस 1000 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे रियासत आसाम में लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सालसी में तय पाने वाले मुआहदे के तहत रूसी मलेशिया वागनर के सरबरा एवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस मुंतकिल हो जाएंगे। रूसी महकमा दिफा क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन में लड़ने वाली निजी फौज वेगनर ग्रुप के सरबरा एवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ मुकदमात दायर नहीं किए जाएंगे और वो खुद बेलारूस चले जाएंगे। बेलारूस की सालसी के बाद वेगनर मलेशिया ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोकने के साथ साथ जेर कब्जा रोस्तोवो शहर को भी खाली कर दिया है और अब वेगनर ग्रुप के जंगजू अपने कैंप्स की तरफ वापस जा रहे हैं, जबकि रूसी क़यादत बागी मलेशिया के एहलकारों और उनके सरबरा प्रिगोजिन के तहफ़्फ़ुज़ पर भी रजामंद हो गई है। एलामिया में बताया गया है कि फरीकैन ने खून रेजी और बैरूनी मुदाखलत से बचने के लिए जंग बंदी पर रजामंदी का इजहार किया है। इससे कबल वेगनर ग्रुप के निजी फौज के जंगजुओं ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी का इरादा किया और रास्ते में दारुल हुकूमत से 1100 किलोमीटर दूर शहर रोस्तोवो में फौजी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश भी की, जिसे नाकाम बना दिया गया था। इस वाक़े के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने
ٹی وی پر اپنے خطاب میں جنگجوؤں کی کارروائی کو مسلح بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور ناظرین، کینیڈین حکام نے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گہرے سمندر میں جانے والے ٹائٹن آبدوز کے پھٹنے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے کہا ہے کہ چونکہ آبدوز کو سطح سمندر سے کنٹرول کرنے والا پولر فرینچ جہاز کینیڈین ہے، اس لیے وہ آبدوز کے آپریشن کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر رہا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے اپنی ٹیم روانہ کر دی ہے جو لوگوں سے انٹرویوز کرے گی۔ جمعے کو امریکی کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن آبدوز میں سوار 5 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آبدوز کے ملبے کے حصے بحر اوقیانوس کی تہہ سے ملے تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے ریئر ایڈمرل جان میگر نے کہا تھا کہ حادثہ آبدوز کے اندر دھماکے سے ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا، شمالی اور مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ دالبندین میں 49، نوکنڈی 48، سبی میں 46، دادو میں 45 جبکہ سکھر میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں سخت گرمی کا راج برقرار ہے۔ گلیشیئر پگھلنے لگے، درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے لگا۔ این ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ دیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آج رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ سورج کی تپش، گرمی کی لہر میں اضافہ، ہیٹ ویو کا بھی خدشہ۔ ملک کے بیشتر علاقے سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جھلسا دینے والی گرمی کی لہر نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ ہونے کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں، تیز دھوپ میں سر ڈھانپیں، بیمار بزرگ بچوں اور جانوروں کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مرطوب ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 25 سے اگلے آنے والے دن جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ان میں بارش بھی ہوگی۔ یہ پری مونسون کی اب ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش ہے، اور اس میں اچھی خاصی تقریباً کچھ ایریاز میں بارش ہے، اور لوگوں کو ریلیف بڑا مل جائے گا، اور عید بھی آپ کی اسی طرح گزر جائے گی، بادلوں میں، بارش میں، دھوپ میں۔ ارسا کے مطابق اسکردو میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پگھلنے لگے اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر موسم خوشگوار رہے گا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، یہاں رخ کریں گے لاہور کا، جہاں گرمی کی شدت بدستور قائم ہے اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے شہر میں بارشوں کا امکان ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ شہر میں موسمی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ آج بھی شدید گرم ہے۔ اتوار کا روز ہے، سڑکیں آج خالی ہوتی ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے زیادہ سڑکیں آج خالی نظر آ رہی ہیں۔ شہر کا آج درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت درجہ حرارت 38 تک پہنچ چکا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ایک ہفتے تک جو درجہ حرارت ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور کل 37، پرسوں 36 ڈگری تک جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر میں ایک ہفتے تک بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یقیناً شہریوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ شدید گرمی کے بعد ایک ہفتہ جو ہے اگلا یہ بارشوں کا ہونے والا ہے۔ لاہور شہر میں موسم جو ہے وہ شدید گرم ہے۔ ماہرین صحت نے بھی شہریوں کو کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنا سر ڈھانپ کے نکلیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جسم میں پانی کا بھی واقعہ نہ ہو۔ تو لاہور شہر کا جو موسم ہے وہ کافی گرم ہے، شہریوں کو کافی زیادہ اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب 55% ہے۔ شہر میں بہت زیادہ حبس ہے، ہوائیں چل رہی ہیں لیکن شدید تیز گرم
गर्म हवाएं हैं, तो शहरी जो हैं वो परेशान हैं। शदीद गर्मी लाहौर में पड़ रही है, पिछले 1-2 दिन से शदीद गर्मी है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाला हफ्ता जो है वो दर्जा हरारत में उसमें कमी वाक़ होगी और लाहौर शहर में बारिश हो सकती है। जी शुक्रिया मौज़म, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के फटने का मुसलसल खतरा बरकरार है। अपर चित्राल के ब्रीफ गांव को भी ग्लेशियर्स के फटने का मुसलसल खतरा लाहक है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट वादी यारखून के इस खूबसूरत गाँव से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हसन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, मैं इस वक्त अपर चित्राल के इलाके यारखून वैली के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको जो ब्रेप गांव है जिसको यारखून वैली का गेटवे कहा जाता है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा और इसके ऊपर आपको 2 अदद ह्यूज ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये वो ग्लेशियर्स हैं जिसकी वजह से ये ब्रेप जो है वो मुसलसल जो है इसको जो सैलाब का है वो एक ख़तरा जो है वो लाक रहता है। गुज़श्ता साल अगर हम अपर चित्राल रीजन की बात करें तो ब्रेप गाँव जो है वो सैलाब से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ था। तकरीबन 71 हाउसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हुए थे। इसके अलावा तकरीबन 150 के करीब जो मकानात हैं वो पार्शली जो है वो डैमेज हुए थे। बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो गया। 3 स्क्वायर किलोमीटर की ज़ेरे काश जो है वो राजी थी, जो जिसका अब नामो निशान भी जो है वो बाकी नहीं रहा है। जब सैलाब आया था तो इस आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट ने यहाँ पर फौरी रिलीफ की जो एक्टिविटीज़ की थी, वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया था। इसके साथ साथ जो है इनको जो है वो आर्जी शेल्टर प्रोवाइड किए थे। अब इनकी परमानेंट जो है वो रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट की जो है वो एफर्ट्स की जा रही हैं। 70+ प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस यहाँ पर जो है वो तामीर किए जाएंगे और लोगों को यहाँ पर जो है वो परमानेंटली सेटल किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया हसन, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि यमन के समाजी फ़ंड बराए तरक्की के 23 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने वफ़द को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में तब्दीली का एजेंडा बन चुका है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में कम आमदनी वाले तबकों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक मौसर ज़रिया है। उन्होंने कहा कि BISP ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का बेहतरीन और अमली तरीका है। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से बच्चों के स्कूलों में दाखिले में इजाफा हो रहा है, जिसमें 70% हाजिरी की बुनियाद पर तालिबे इल्मों को वजीफा दिया जाता है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि BISP डिजिटल और मालियाती ख़ानदगी जैसे प्रोग्राम मुतारिफ करवा रहा है। उन्होंने वफ़द को बताया कि 90 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 81 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। यमन के समाजी तरक्की फ़ंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम कायद ने कहा कि BISP कम आमदनी वाले अफराद की मदद के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। It's a fantastic initiative, and what we're looking to learn from the Benazir Income Support Program is, how do we deal with introducing technologies to help us manage volumes of data, beneficiary data, enabling us to target the most vulnerable people. We're also keen to learn from the Benazir program on how we add valuable services to the most needy peoples of society. नाज़रीन, पेम्स हस्पताल में मरीजों का बोझ बहुत ज़्यादा है। 12 से 14 हज़ार मरीज रोज़ाना इलाज के लिए आते हैं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक अस्पताल में एयर कंडीशन सिस्टम के अपग्रेडेशन का मरहला जारी है। PWD को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर सिस्टम में ताअत्तुल पैदा हुआ है। वज़ीर सेहत की हिदायत पर न्यू एमरजेंसी में हंगामी बुनियादों पर रात को 9 बड़े एयर कंडीशंस लगा दिए गए हैं। अस्पताल की फार्मेसी में अद्वियात वैक्सीन महफूज हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फार्मेसी में अद्वियात ख़राब होने का खदशा है। ईद उल अज़हा पर जहां लोग सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए कुर्बानी करते हैं, वहीं कुछ साहिब सरबत अफराद फलाह इंसानियत में ईद की तैयारी के लिए इस्तात ना रखने वाले बहन भाइयों को भी नहीं भूलते। मज़ीद जानते हैं जेहलम से नईम भट्टी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के मौके पर इस्तात ना रखने वाले अफराद के लिए जेहलम से 60 किलोमीटर दूर डोग निज़ामुद्दीन में मेहरबानी शाब का इनेकाद किया गया, जिसमें 2005 के ज़लज़ला में यहाँ आए हुए अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए नए कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मुफ्त दी गईं, ताकि वो भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना सकें। बहुत खुशी महसूस हुई है कि इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख के, जब वो उन्होंने खिलौने वसूल किए हैं, जब उन्होंने कपड़े लिए हैं। गाँव के अफराद का मेहरबानी शाब लगाने पर डॉक्टर्स और फलाही इदारों की टीम को खूब सराहा। जिन लोगों ने कपड़े दिते, अल्लाह ने बात करे, अल्लाह ने खुशी दसे, असन लोगों ने गरीबों की दी, सारी अल्लाह जिंदगी करे उन्हें।
कपड़े मिले चीज़ें मिलियाँ बिस्किट मिलियाँ मेहरबानी की है नहीं कपड़ा बच्चियाँ ना सब कपड़ा देता है। फलाह इंसानियत के इस अमल से इन अफराद को ईद उल अज़हा की खुशियों में बराबर का शरीक करना है। नई भट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेलम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गिरजाघरों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। CCPO लाहौर ने पुलिस अफसरान को गिरजाघरों और अहम मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत जारी की हैं ताकि गिरजाघरों में इबादत के लिए आने वाले मसीह बरादरी के अफराद को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। डॉल्फिन स्क्वाड समेत पीरो और एलीट टीमों को गिरजाघरों के अतराफ में पेट्रोलिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से माहौलियाती सहाफ़ियों की तरबियत के लिए उकाड़ा में फील्ड विजिट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को आबी इंतज़ाम के हवाले से ट्रेनिंग देना था। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट रिसर्च फॉर्म रनाला खुर्द डॉक्टर हबीबुल्लाह ने मीडिया नुमाइंदगान से दरख्वास्त की कि वो लेज़र लैंड लिविंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में हमारी मदद करें ताकि पानी के महदूद ज़खायर को इस्तेमाल करते हुए पानी और फसलों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर जहाज़े मसूद चीमा ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए जदीद आलात को ज़िला उकाड़ा में मुतारिफ कराया गया है, जिससे ज़राअत के शोबे में पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल को फ़रोग मिलेगा और ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर पाकपतन में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्बास अली आरफी से। पाकपतन में ईद कुर्बान पर 2 बड़ी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और कुर्बानी करने के लिए लोग अच्छे खूबसूरत जानवर अपनी मर्जी की कीमत पर खरीदने के लिए इन मंडियों का रुख कर रहे हैं। खरीदारों की कोशिश है कि उन्हें कुर्बानी के लिए अपनी पसंद का जानवर सस्ते दामों मिले। इतने बकरे महंगे इन्हें के हाथ ही लगता, जो 40,000 का बकरा होता है 1,20,000 मंगन रहे हैं। कुर्बानी आ तो छतरा लेना आए हैं। शहरी जानवरों की ज्यादा कीमतों की शिकायत कर रहे हैं और व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। व्यापारियों की कोशिश है कि उन्हें अपने जानवरों की मुंह मांगी कीमत मिले। बकरा साढ़ा है 80,000 का, कोई 30,000 का, कोई 35,000 का। मुनासिब रेट तो दे रहे हैं माशाल्लाह, साडा कट्टियां का काम ठीक है। मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों के चेकअप और वैक्सीनेशन के लिए वेटरनरी कैंप लगाया गया है, जहां जानवरों का मुफ्त चेकअप और वैक्सीनेशन की जा रही है। महकमा लाइव स्टॉक पाकपतन की तरफ से मवेशी मंडियों में फ्री कैंप का इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें तमाम जानवरों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें पिछले साल की निस्बत ज्यादा होने के बावजूद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीद रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे नवाब शाह से, जहां महरान हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम के नतीजे में 5 मुसाफिर जाँ भाग जबकि 50 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार एक मुसाफिर बस कराची से रहीम यार खान जबकि दूसरी खैबर पख्तूनख्वा से कराची जा रही थी। हादसे के 42 जख्मियों को पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसा ओवरटेक करते हुए पेश आया। नाज़रीन, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के पंजाब हाउस कैंप्स में एक रोज़ा रंगारंग कोहसार कल्चर गाली का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने रवायती खानों के स्टॉल्स और दिलचस्प परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा की जानिब से सकाफत पर मबनी टैबलोज भी पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी ने कहा कि सकाफत और रिवायत जिंदा कौमों का असासा होती हैं और कौमों की पहचान भी अपनी रिवायत और सकाफत से ही होती है। इसके जरिए एक दूसरे को समझना और एहतराम देने का मौका मिलता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने मरी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि आम शहरियों को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मरी में बुनियादी मराकज़ सेहत को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों में पूरे पाकिस्तान से सयाह आते हैं। तमाम शोबों में 24 घंटे डॉक्टर्स और अमला अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं।
किंग ऑफ पॉप के नाम से दुनिया भर में शोहरत कमाने वाले अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए, मगर वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। इसी हवाले से लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। पॉप मौसीकी से लगाव रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो माइकल जैक्सन से मुतासिर ना हो। अमेरिकी गुलकार, मौसीकार और डांसर माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक को एक नई जहत दी और डांस का मुनफरद अंदाज ब्रेक डांस मुतारफ कराया। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए। महज 6 साल की उम्र में अपने भाई के म्यूजिक ग्रुप जैक्सन 5 के जरिए मौसीकी के उफ़क़ पर नमूदार हुए। 13 साल की उम्र में सोलो परफॉर्मेंस शुरू की और अछूते अंदाज और डांस के बायस अपनी अलग पहचान बनाई। 1982 में उनकी शोहरा आफाक एल्बम थ्रिलर ने दुनिया भर में धूम मचा दी और उन्हें शोहरत के बामे अरूज तक पहुंचा दिया। उन्नीस 1987 में एक और कामयाब एल्बम बैड रिलीज करने के बाद माइकल ने दुनिया भर में कंसर्ट करने की ठानी और बेहद पजीराई हासिल की। उनकी एल्बम डेंजरस को भी खासी शोहरत मिली। खुसूसन उसके 2 ट्रैक्स रिमेंबर द टाइम और ब्लैक और वाइट को बेहद सराहा गया। उन्होंने डांस में जिद्दत पैदा की और मगरबी अंदाज के साथ मुख्तलिफ मुल्कों के डांस का हसीन इम्तजाज पैदा किया। माइकल जैक्सन एक कामयाब गुलकार होने के साथ साथ सखी दिल इंसान भी थे। उन्होंने कई फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। माइकल जैक्सन की अज़दवाजी जिंदगी कोई खास खुशगवार ना रही। उन्होंने 2 शादियां की लेकिन दोनों नाकाम रहीं, जिसके बायस वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जहनी दबाव का शिकार रहे। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी वजह वफात आज भी एक मुअम्मा है। माइकल जैक्सन ने तकरीबन 4 दहाइयों तक फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। वो आज भी शायकीन के दिलों में जिंदा हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, बल्तिस्तान के ज़िला शिगर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। ताहम बुनियादी सहूलियत ना होने के बायस अब भी कई खूबसूरत मकामात सयाहों की पहुँच से दूर हैं। इन्हीं में से एक तहसील गुलाबपुर में मौजूद आबशार है। इस आबशार की सैर करा रही हैं गुलजार शिगरी। ज़िले शिगर से 16 किलोमीटर के फासले पर गुलाबपुर गांव में मौजूद छोगो आबशार अब तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। शीशे की तरह साफ और बर्फ जैसा ठंडा पानी हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। बहुत ही खूबसूरत आबशार है। यहाँ पे एक दही दो आबशार है। इस छोगो गाँव में शिगर हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये छोगो आबशार है। ये बहुत हसीन कुदरती आबशार है। हम यहाँ पे घूमने आए थे और मैं कहता हूँ कि बाकी लोग भी अगर यहाँ घूमने आए तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत आबशार है। यह आबशार बहुत ही खूबसूरत आबशार है। इसका नाम सुना था, लेकिन इधर आज आके हम यह आबशार देख के बहुत खुशी हुई। हुकूमती सतह पर ऐसे आबशारों तक रसाई के लिए इक़दाम करें तो इससे सयाहत के शोबे में बेहतरी आएगी। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। सियाहत के फ़रोग़ और मकामी सकाफ़त, तहज़ीब और अशनास की नुमाइश के लिए गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे में 2 रोज़ा चेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अली आलम की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम खशल एग्री टूरिज़म पार्क ग्वाड़ी में 2 रोज़ा नेशनल चेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। फेस्टिवल के पहले रोज़ मुकामी फलों, सब्जियों, इलाकाई मलबूसात और ग़ज़ाई अजनास की नुमाइश की गई। रुकन असम्बली गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने फिता काट कर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और सरकारी अफसरान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा किया। ये चेरी फेस्टिवल के नाम से इवेंट है, लेकिन यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है लोगों को, टूरिस्ट को देखने के लिए और मार्केटर्स को अवेल करने के लिए। और हम अपनी ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें जो मार्केट में लोगों को अच्छी कमाई दे सकें। चेरी फेस्टिवल में आने का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को एग्री टूरिज़म के बारे में बताएं कि एग्री टूरिज़म एक दुनिया में उभरती हुई इंडस्ट्री है। बाकी दुनिया में तो ये बहुत आगे पहुँच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है।
इनिशिएटिव लिया है और हम चाह रहे हैं कि हम उसको हर सूबे और हर शहर में पहुंचाएं। फेस्टिवल में मुकामी लोगों के साथ साथ मुल्की सयाहों ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। हम यहाँ से गुजरे थे तो हमें नज़र आया चेरी फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और सबको पता चल जाता है, हम इस तरह के फेस्टिवल में हमें बुलाते हैं तो हम उधर जाके लोगों को दिखाते हैं ये सारी चीज़ हमारे वहाँ पे है, तो हमारे फायदे यही होते हैं। इस तरह के फेस्टिवल से यहाँ के इलाकाई प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पजराई मिलने के साथ साथ सेहत की फरोख्त और यहाँ की लोगों की मैशियत भी बेहतर हो सकते हैं। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गाछे। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब हुकूमत के हाजिर सर्विस, रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना में ईद उल अज़हा की खुशियां दुबाला करने के लिए चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने पंजाब हुकूमत के 755 मुलाजमीन में 2 करोड़ 3 लाख के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना ने माली इमदाद के चेक देने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। गौसुल हक मखदूम का 1 रोज़ा सालाना उर्स आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में देखते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल की रिपोर्ट। हज़रत गौसुल हक मखदूम सरवर रहमतुल्लाह अलैह का 446वां सालाना 1 रोज़ा उर्स मुबारक आज हाला में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सिंध समेत मुल्क के चारों सूबों से मुरीदीन अकीदतमंद आला में दरगाह सरवनू पे पहुंच गए हैं। एक तरफ दरगाह सरवनू में कुरान ख्वानी मुनक़िद की गई है तो दूसरी तरफ मुरीदीन की जानिब से विरद इलाही करने के साथ साथ मौलूद शरीफ पढ़ने के अलावा हज़रत सरवर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी जा रही है। मुरीदीन का कहना था कि उर्स मुबारक आकर हमें रूहानी सुकून मिलता है। हम सादकाबाद से हजरत मखदूम सरवर के उर्स मुबारक पर आए हैं, हमें रूहानी सुकून मिलता है। यहाँ पर मुरीदीन सिंध, पंजाब और इंडिया से आते हैं। गादी नशीन पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली रुकन मखदूम जमील जमान उर्स के मौके पर दरगाह सरवनू पे हाजिरी देकर मुरीदीन से मुलाकात करके इन्हें अल्लाह के अहकामात पर चलने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चलने के लिए तलकीन की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम भी किए गए थे। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी।